Welcome back to Chai Chat, where we are discussing the sore point of 1984 between the Sikh and the Hindus, and we could not really get a consensus on moving on from 1984 and just forget and forgive. We have not been able to do that. Iqbal Sahab, I will come to you. You come from Bangladesh. 1971 happened. Do you think it is very difficult to forget and forgive? Well, I was 8 years old and we were living in London. A lot of our family died. My father's only brother died in the war, and it was obviously deeply disturbing to everyone at the time. And as we grew to know more and more about it, we became more and more resentful. And there was always a conflict between people of Bangladeshi origin and Pakistan. We were East and West Pakistan after all. But the scars, amazingly, still live on today. They're still in Bangladesh, there's still the tribunals going on, there's still the legal cases being made. Now, I was here in the comfort of London, the relative comfort of London, so I don't know exactly how terrible it was back there. I hear it was awful. But for me, watching it still carry on today, and with people being attacked and murdered, not just over there, but over here, conspirators over here, the people who are called the collaborators here, who are of Bangladeshi origin, who collaborated with Pakistan, are still being hounded out in London. And I'm thinking, we have much bigger issues to concern ourselves with. We have a huge number of unemployed people over here. We've got the worst crime tendencies. We have the worst housing. Should we really be focusing on that and not where a material change can happen in this country and do more to develop ourselves over here? Because we're by constantly looking back over our shoulders, we're not moving forward. I think I take his point and I take it to all of you, whoever wants to talk on it, you as well. हम क्यों माफ नहीं कर पा इस वास्ते नहीं माफ़ करते। एक तो साडा जिथे दरबार साहब अटैक होया वो तो दर्दनाक कदी माफ़ करने के काबिल ही नहीं हो सकता। दूसरा जेड़े अज किसी कोल भरा नहीं हैगा, जिन्ने जंग मुंडे सीगे, पुलिस ने 84 विच ते कीता ही कीता जुल्म, उस तो बाद भी किसी दा प्यो नहीं हैगा, किसी दा भरा नहीं हैगा। वो जिहड़ियां मेरे वर्गे सिस्टरां होण उन्हां नूं जदों अंदर भरा दी लोड़ पैंदी आ, फादर दी लोड़ पैंदी आ, जिहड़ी उन्हां दी लाइफ स्टाइल सी वो खत्म हो गई, फिर वो किद्दां भुल सकदे आ? जदों वो जनरेशन असीं मावां अपने बच्चिआं नूं दसने आ, फिर बच्चिआं दी भी अग्गों ही फीलिंग हुंदी आ। कैलाश जी, इस सिलसिले में यही कहूँगा कि जो भी दर्द है वो सारे हिंदुस्तान के मन में है। मैं कभी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि 84 में जो खून खराबा हुआ उसके लिए सिर्फ सिख लोग दुखी हैं, उसके लिए सारा हिंदुस्तान दुखी है, सारा हिंदुस्तान शर्मिंदा है। If you pick up on what you just said there, that means that we watch Gaza, but we've got no right to comment on it. We watch what happens with ISIS, but we've got no right to comment on it. We're global citizens at the end of the day. The internet makes us global citizens. We have a right to comment on everything, and when you have personal histories, we have even more right to comment on them. We can't just leave it to those countries. If we leave it to those countries, Israel will carry on doing what it does in Israel. We have any right to comment, but we can't change the course of history of those millions of people sitting abroad. Of course we have to comment, we have to give our opinion. why are we still so emotionally charged here? You told me in 1983 here, because it was very disturbing. You still support KHalsa, which is a separate Khalistan. Why? We don't think that happens in India. हमारा हक है अपने देश के लिए स्ट्रगल करना, हमारा हक है। जैसे भाई साहब ने कहा कि हम गरीबों का रक्षा करें, क्यों करें? कौन से गरीब जो साढ़े जिन्होंने किलिंग की आज तक एक आदमी हैंग नहीं हुआ। 4000 बंदा इंडिया दिल्ली विच कत्लेआम हुआ, 4000 और नॉट वन इवन वन एक को सजा नहीं मिली। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी पड़ेगी। आपने बहुत एक तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि हिंदू और सिख के बीच कोई नाइत्तेफाकी नहीं थी तो सरकार के बीच, सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जो जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको बचाते रहे, और उस सज़ा उन लोगों को सज़ा देने के लिए भी जिन लोगों ने कैंपेन किया उसमें अपोजिशन पार्टीज़ के बहुत सारे लोग थे जो हिंदू धर्म से आते थे, इस्लाम धर्म से आते थे। तो वहाँ पर ये नहीं था कि जैसे कांग्रेस, ये सही है, कांग्रेस पार्टी
1984 के जो दोषी लोग थे उनको बचाने के लिए काम करती रही। उनको सज़ा दिलवाने के लिए जिन लोगों ने काम किया है उनमें केवल सिख ही नहीं, उन बहुत सारे हिंदू हैं। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट तो ये फिर कोई अफसोस नहीं की, आया हाँ ना। ये बिल्कुल अफसोस की ये बात सही है बात, कि ये आज बहुत तक अफसोस कोई की बात रिजल्ट नहीं है। निकला। और मैंने शुरू में कहा कि ये भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय है। जसवंत जी, यहाँ यूके में रहकर क्या हम हिंदुस्तान का नक्शा बदल दें? ऐसा हम यूके में रह के क्यों कर रहे हैं जब हिंदुस्तान में ऐसी कोई पहल नहीं है? हमारे रिलीजन में लिखा है जहाँ जहाँ खालसा रहा ਤਾਂ रशिया रहा। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ जी ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਆ। तो लेकिन भारत में जाके फिर आप क्यों नहीं? भारत में तो कोई नहीं बोलता ये। वो सब बोलते हैं जी, कौन नहीं बोलता? पंजाब में रोज बोलते हैं, आप देखो अखबार देखो टीवी सभी बोलते हैं जी। और हिंदुस्तान हमें जाने नहीं देते, जहाँ जाने थे हम लोग वहाँ जाके भी बोल रहे हैं। क्यों आप हिंदुस्तान जाएंगे तो क्या होगा? वो गोली मार देंगे। क्योंकि इनके सर पे 50,000 का इनाम था सब। और नाम भी तब- डेड एंड अलाइव, और जिन्हें कोई देख क्राइम ही रहे- नहीं किया मैंने, जी कोई क्राइम ही नहीं किया। विदाउट क्राइम मेरा रिवार्ड था, क्योंकि मैं सिख था। जैसे कैलाश जी एंड विजय जी, मैं इस पर आपकी तवज्जो चाहूँगी कि क्या भारत में खालिस्तान की या इस तरह की जो अलगाववादी बातें हैं या 1984 को लेकर इतना रिफ्ट और जोर दिल में है? देखिए 1984 को लेकर गुस्सा लोगों में है, और पिछले दिनों जो मिस्टर पायलट थे उनको हटना पड़ा था सरकार से और वो सारे केसेस खुलवाने की बात है, जी तो वो इशू अभी है, अभी जी। जिंदा है, और लोग चाहते हैं कि 1984 के जो दोषी लोग हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आगे अब किस तरह से इसको एक पॉजिटिव मोड़ दिया जा सकता है? क्या हम इसे भूल सकते हैं? क्या आप अपने आप को भारतीय मानते हैं? आखिर में दो लाइन में आप सबसे जानना चाहूंगी। कैलाश जी। भाई, हम कुछ माने, वक्त हमारी बात मानने को तैयार होगा या नहीं, हमें ये सोचना पड़ेगा। मुझे संक्षिप्त में बताइएगा। आंसर जो मैंने आपसे बोला। 1984 जो है वो ठीक उसी तरीके से याद रखा जाएगा जिस तरीके से सदियों से हमारे जो जब भारत में जुल्म हुआ, जो चीज़ें हैं वो वैसे केस वैसे 1984 क्योंकि करंट है, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से साथ मिलकर आगे बढ़ने के अलावा हमारे सामने कोई और रास्ता नहीं है, और यदि कोई रास्ता हम चुनेंगे तो वो आपसी मतभेद का होगा, लड़ाई झगड़े का होगा, खून खराबे का होगा, बर्बादी का रास्ता होगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਇਹ ਹਜੇ ਅੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲਣੇ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਆ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਮਾप्त ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ पीसफुल मूवमेंट नवी चलेगी। यहाँ हमारा चाय चैट का जो मंडल था वो अभी भी एकजुट नहीं है इस मुद्दे पर। बहरहाल 1984 है ही एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ही इमोशनल, जिससे यहाँ जुड़ाव है लोगों का। एंड इफ़ यू वांट टू लीव एनी फीडबैक प्लीज़ आप मुझे ट्विटर कर सकते हैं @लवीना टंडन या चाय चैट @aajtak.com पर। Thank you very much for being with us and see you next week. God bless.